Hello students, I hope you are doing well during the lockdown period and you are using your time in a very efficient manner, very precious manner. This is Virendra, your IT instructor, and today I just want to welcome you all the participants, all the students. So this video belongs to class 11th student, and class 11th student will learn many things in this, but this video is belongs to only employability skill, and this is your IT instructor. I am welcoming you all once again on my YouTube channel. Now I am coming to the next slide for giving you the content. This is your starting of the IT, and this is part A, employability skill, and we are running here unit number 1, communication skill, and this unit is divided into 14 sessions, and currently these are the sessions details here, and we are studying one by one each and every sessions. Okay, and right now this is the session number 5, and the session number 5 is communication style, assertiveness. So this is the name of your session, and today we will have a full detail about this session. Okay, this particular session we are having a lots of enjoyment, lots of fun, so that you can have a better understanding about this communication style, assertiveness. So without wasting any of the time, let us start our video. Okay students, now I am going to start session number 5, communication style, assertiveness. So first of all, before starting the session, I just want to know what is assertiveness. Assertiveness क्या होता है? If you see the dictionary meaning, it means confident, bold. In Hindi, you can say the person who giving the respect to the others. This is the meaning of assertiveness. So in this session, what we are going to learn? We are just going to use verbal communication and non-verbal communication skills, and this session is a study only for one reason. The reason is we have to use the correct communication style. We have to make our communication more effective so that the other person can understand in a clear manner, in a better way. This is the intention of this session. So what are the different communication styles are there? What are the important communication styles are there? Let's have about the same. See, this is the table 1.10, and we are going to study about different communication style. So there are 4 kinds of communication style: aggressive, passive, submissive, number 3 passive aggressive, and last one is assertive. So first of all, we have to know about the meaning of each and everything. So first of all, what is aggressive? What does it mean? It means that you are not respecting to the other person due to aggressiveness. Okay, you want to win the competition at any cost. Now if I ask you what is the meaning of passive or submissive, then in passive submissive the meaning is clear, very much clear. You are not going to respect to the other person, you are losing your self-respect. Okay, you are not in your control, you are avoiding the conflict. Okay, these are the exact meaning here. मतलब क्या हुआ कि आप अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको आप धीरे धीरे करके आप पैसिव मोड में ले जाते हो. आप लोगों की रिस्पेक्ट है वो करने थोड़ा कम कर देते हो. आप अपना भी सेल्फ रिस्पेक्ट कम कर देते हो. आप अपने खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते. आप
Okay, if I ask you what is the if suppose passive and aggressive both are combined together, then what will happen? तब क्या होगा? Then तब उसका मतलब क्या हो सकता है, क्या actions हो सकते हैं? Okay, so let's try to understand. Trying to get your own way without taking responsibility. कि जब आप पैसिव और एग्रेसिव दोनों हो जाओगे आप, तो उस समय आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझोगे, आप अपना रास्ता खुद बनाने की कोशिश करोगे बिना किसी जिम्मेदारी के, और बिना किसी जिम्मेदारी के सही रास्ता आप नहीं पकड़ सकते आप. ट्राइंग टू गेट योर ओन वे विदाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ हर्टिंग योर सेल्फ एंड अदर्स. अब अपने आप को नुकसान, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आएगा, पैसिव मोड में चले जाओगे, अब क्या होगा, आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हो, दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हो आप. नाउ अब हम बात करते हैं जो इस चैप्टर की जान है, दैट इज कॉल्ड असर्टिव. Assertive means you are going to maintain your self-respect, you are respecting to the others. Okay, so to give you the better understanding, I just go give you the example of one example of each and every one. First example for aggressiveness. Okay, so the best example here, you are not caring the views of others, you are dismissing, ignoring the insulting others. You are okay, मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर दूसरे के व्यूज का, किसी भी तरह का, किसी की ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखोगे आप बिल्कुल दूसरे की जो है बेइज्जत करने में आप बिल्कुल हो गए, शाउट करोगे बहुत तेज़ी से. ओके, या आप स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का यूज़ करोगे, किसी की बात नहीं सुनोगे आप. ये कुछ एग्जाम्पल है कि अगर आप एग्रेसिव हो जाओगे तो. लेकिन अगर आप पैसिव हो जाते हो या सबमिसिव हो जाते हो तब क्या होगा? कीपिंग क्वाइट, नॉट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ. अपने आप को बिल्कुल शांत कर लोगे, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं करोगे. एक्सेप्टिंग इवन रॉन्ग रिमार्क्स फ्रॉम अदर्स. आप क्या करोगे? आप दूसरे लोग जो आपको रिमार्क देंगे, जो आपके बारे में बताएंगे, उसको भी आप आसानी से एक्सेप्ट कर लोगे भले वो गलत हो. सेइंग सॉरी इवन व्हेन इट इज नॉट योर मिस्टेक. यस, आपकी गलती भी नहीं है, तब भी आप सॉरी कहोगे आप. अब हम बात करते हैं कि अगर पैसिव और एग्रेसिव दोनों अगर आपका मिक्स हो, उसका क्या एग्जांपल है? इनडायरेक्ट वे ऑफ शोइंग एंगर, मतलब आप सीधे तौर पे आप गुस्सा नहीं दिखाओगे, आप किसी और तरीके से गुस्सा दिखाओगे. एग्जांपल सच एज नॉट डूइंग द टास्क. कोई जो टास्क दिया गया उस टास्क को नहीं करोगे आप. नेक्स्ट है टेकिंग इल अबाउट अदर्स इन देयर एब्सेंस. मतलब अगर कोई वहाँ पे इंसान नहीं है तो उनकी एब्सेंस में आप वहाँ पर कोई गलत काम करने के प्रयास करोगे, आप बीमारी का बहाना बनाओगे आप. अब हम बात करते हैं असर्टिव के एग्जांपल्स. एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ व्हाइल लिसनिंग टू अदर्स. पॉइंट मतलब आप अपने आप को व्यक्त करोगे, दूसरों की बात अच्छे से सुनोगे आप. अंडरस्टैंडिंग अदर व्यूज एंड प्रॉब्लम्स, आप दूसरों के प्रॉब्लम्स सुनोगे, समझोगे. डिसएग्रीइंग और सेइंग नो विदाउट हर्टिंग अदर्स. बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए आप उनको नो कह सकते हो. आप कोई लगता है कि एग्री नहीं करना चाहिए किसी बात पे, आप डिसएग्री कर सकते हो आप. अब इसके बाद हम समझते हैं कि क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं अगर आप ऐसा करोगे, आपका आउटकम क्या हो सकता है. जैसे एग्रीनेस अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? इल फीलिंग, गलत फीलिंग आएगी आपके मन में. एंगर आपको बढ़ता ही जाएगा. ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है वो भी आपका बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाएगा. नेक्स्ट, अगर आप पैसिव मोड में चले जाते हो तब सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आपका लूज हो जाएगा. इसके अलावा कॉन्फिडेंस लूज होने के बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक नहीं रहेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग करोगे, हर चीज़ गलत समझोगे आप. अगर आप पैसिव और एग्रेसिव दोनों हो जाते हो, नॉट गेटिंग द रिजल्ट यू वांट टू द कम्युनिकेशन, मतलब कि अगर आप कम्युनिकेशन की हेल्प से जो भी रिजल्ट चाहते हो आप, वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी. आप सभी के बारे में आप गलत भावना रखोगे आप. लेकिन अगर आप असर्टिव हो जाते हो तब उसका रिजल्ट क्या होगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन. यही आपको ध्यान रखना है, यहीं पे सारा ध्यान आपको लगाना है कि आप असर्टिवनेस रहो, आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करो. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स मच बेटर एंड दे डू कैन अंडरस्टैंड यू. मतलब आप अपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन से दूसरे की बात समझो, दूसरे की बात आप बताओ अपने आप को कि आप कौन हो, कैसे हो, आप पूरी बात अच्छे से बता सकते हो, आप दूसरी की भावनाओं की कदर कर सकते हो आप. तो दिस इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन स्टाइल. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज व्हाट इज असर्टिव कम्युनिकेशन.
Being assertive is a healthier communication style. Yes, out of four, the healthiest communication style is assertive. अब क्या क्या चीजें शामिल है इसके अंदर? एक्सप्रेसिंग योर व्यूज विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग द अदर्स. यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, कि आप अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हो. आप यहाँ पर किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाओगे. आप डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे दूसरों की भावनाओं का. आप उनकी हर चीज की कदर करोगे आप. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग योर ओपिनियन. कम्युनिकेटिंग योर ओपिनियन एंड विशेस क्लियरली. मतलब आप अपनी राय को, अपनी बातों को अच्छी तरीके से दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने के प्रयास करोगे आप. बीइंग ओपन टू अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू. यस, फाइंडिंग अ बैलेंस बिटवीन द नीड्स एंड अदर नीड्स. कि आप अपनी ज़रूरतों और दूसरों की ज़रूरतों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे आप. नेक्स्ट वन इज एडवांटेज ऑफ असर्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि आपको फायदा क्या क्या मिल सकता है आपको. ओके, सबसे पहले असर्टिव अगर रहोगे आप तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बनेगा भी और बढ़ेगा भी. सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बनेगी भी. प्रिवेंट यू फ्रॉम सेइंग वर्ड्स और डूइंग एक्शंस दैट यू मे रिग्रेट लेटर. नाउ मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर अपने वर्डों का जो चुनाव है वो सही तरीके से करोगे. कि अगर आपको नहीं बोलना है तो आप सही समय पे नहीं बोल सकते हो. आप जहां आपको बोलना है हाँ, वहां पे आप हाँ बोलोगे आप. ओके, जो गलत शब्दों का इस्तेमाल कम कर दोगे आप. मेक्स यू एंड अदर्स फील पॉजिटिव. कि आप अपने खुद को पॉजिटिव रखोगे आप और दूसरों को भी पॉजिटिव रखने का प्रयास करोगे. मेक श्योर दैट एवरीवन एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड मीट्स द नीड्स ऑफ ऑल. मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप अपने आइडियाज़ को और अपने नीड्स को आप प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करोगे आप. कि मतलब क्या हुआ कि आप जो भी विचार आपके मन में आते हैं, जो थॉट्स आपके मन में आते हैं, दूसरों के विचारों से मैच करने का प्रयास करोगे आप. नेक्स्ट वन इज हेल्प यू टू बिकम अ मोर कॉन्फिडेंट वर्कर एंड फिनिश अ बेटर कम्युनिकेटर. कि यहाँ पर एक बेटर कम्युनिकेटर बन जाओगे आप, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट वर्कर बन सकते हो आप. लेकिन बी असर्टिव. अब हम बात करने जा रहे हैं कि असर्टिव कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस कैसे करें. हाउ वी आर गोइंग टू मेक अ प्रैक्टिस फॉर असर्टिव कम्युनिकेशन. सो आई एम गोइंग टू शो यू द table, and in that table we are giving some tips to you. Now first of all, what we are doing here, be confident. When someone walks to your room smartly with the confidence, he or she gets attention very easily. कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपके नज़दीक कोई आए तो आप वहाँ पे उनको ग्रीट करो, प्रॉपर अटेंशन दो, आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करो, तो आपका इससे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा. 7 टिप्स हैं, मैं एक एक करके बात करता हूँ मैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टिप, शो कॉन्फिडेंस इन द वे यू सिट, स्टैंड एंड वॉक. मतलब क्या हुआ कि जब आप चलते हो, जब आप बैठते हो, जब आप टहलते हो, उस समय अपने कॉन्फिडेंस को आप प्रॉपर तरीके से आप यूज़ कर सकते हो. आप कि आप अगर सही तरीके से बैठे हो तो वो भी आपका कॉन्फिडेंस को दर्शाता है. ओके, कीप योर शोल्डर स्ट्रेट एंड योर चिन अप. कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप प्रॉपर तरीके से बैठेंगे, प्रॉपर तरीके से आप शोल्डर्स को स्ट्रेट रखेंगे, चिन को अप रखेंगे, ये भी कॉन्फिडेंस का सिंबल है. प्रैक्टिस मेंटेनिंग योर आई कॉन्टैक्ट. यस, आई कॉन्टैक्ट के बारे में मैंने आपको पहले से बता रखा है कि आप सामने जो इंटरव्यूअर है उसके आंखों में आंखों डाल के बात करो आप उनसे बिना डर के. डोंट गेट फिजिकल नर्वस, डोंट बाइट योर नेल्स, इट्स शोइंग दैट यू आर लूजिंग योर कॉन्फिडेंस. ओके, नेक्स्ट टिप इज स्पीक स्लोली एंड क्लियरली. कि आप अपनी बातों को जल्दी जल्दी मत बोलो, आराम से और क्लियर बोलो आप. टॉकिंग टू फास्ट विल नॉट गिव योर पीपल द टाइम टू लिसन. कि अगर आप जल्दी जल्दी बोलोगे तो आपकी बात सुन नहीं पाएगा, ना ही वो समझ पाएगा. इफ समवन इज एक्यूजिंग यू wrongly or shouting on you, then stay calm, reply slowly and firmly. कि अगर आपके ऊपर कोई गुस्सा करता है, कोई कुछ गलत कहता है, एग्रेसिव होता है, आप अपने आप को शांत रखो और धीरे से और अपने फॉर्मली आप उनको रिप्लाई करो आप. नेक्स्ट टिप इज यूज क्लियर एंड कॉम वॉइस. यानी कि अगर आप असर्टिव हो तो उस समय आपकी जो वॉइस है वेरी काम होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए. बी लाउड एनफ टू बी हर्ड बट डोंट शाउट.
आपको यहाँ चिल्लाना नहीं है, आप इतनी आवाज़ निकालिए कि दूसरे को आवाज़ पहुँच सके और उसको बात प्रॉपर तरीके से समझ में आए। इफ पीपल आर नॉट नोटिसिंग यू, से एक्सक्यूज मी, कि अगर पीपल आपको नोटिस नहीं कर रहा है, नहीं आपको ध्यान दे रहा है, तो उनको एक्सक्यूज मी करके आप इंडिकेट कर सकते हैं। डोंट बी अपोजलिक व्हेन यू आर हैवेंट गॉन एनीथिंग रॉन्ग। मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए तो आपको यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं शो करना है कि आप बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी गलती कर, बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। आपको बिल्कुल माफ़ी की स्टाइल में नहीं आना है। मेक शॉर्ट एंड करेक्ट स्पीच। आप जब स्पीच दीजिए, कोई बात कहिए शॉर्ट्स में और आप अपनी बात को कहिए और करेक्ट वे से कहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, dress correctly. That's a very important thing for you. If you dress correctly, then the person getting impressed on you. Your dress should be neat and clean, smart way of wearing. Okay, the people able to judge that how you are going to look, how you are going to come, why you are came here. Each and everything you are going to look. Okay, so tips for that. लुकिंग कॉन्फिडेंट एंड अट्रैक्टिव कैन चेंज द अदर माइंड। यस, अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो तो दूसरे का माइंड में जो सोच है, जो चल रहा है, वो भी बदल सकते हो आप। पीपल मे नॉट लिसन टू यू सीरियसली इफ यू आर नॉट ड्रेस प्रॉपरली। बिल्कुल, अगर आपका ड्रेस नहीं ठीक है तो आपके सामने जो भी पर्सन बैठा हुआ है वो आपको सुनने को भी तैयार नहीं हो सकता है, नहीं सुनेगा आपको। पीपल रिस्पेक्ट यू व्हेन यू आर ड्रेस प्रॉपरली। यस, अगर आपकी प्रॉपर ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग स्टाइल आपकी अच्छी है, ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, तो सामने वाला जो पर्सन है वो आपकी रिस्पेक्ट जरूर करेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए और बिल्कुल ओपन कम्युनिकेशन करिए। इसके लिए टिप्स क्या है? एक्सप्रेस योर थॉट्स क्लियरली एंड ऑनेस्टली, कि आप अपने थॉट्स को, अपने विचारों को बिल्कुल ऑनेस्टली और क्लियरली रखिए। Ask yourself what you actually want or what will work best for you before agreeing something that is not convenient. कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप अपने काम को अच्छे तरीके से करोगे, आप सभी की सहमति के साथ करोगे, तो जाहिर सी बात है वो सभी के लिए कन्वीनियंट होगा, अच्छा होगा। आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या ये ठीक है। ओके, डोंट बी एग्रेसिव, यानी कि while doing any kind of work, while doing any kind of communication, don't be aggressive, don't use bad languages, don't push anyone, use only assertive communication. So what are the tips for that? Don't confuse the person while doing the aggression work. When you face the unfair situation, stay calm, try to understand the real problem. अगर आपके पास कोई unfair situation आ जाए, आप बिल्कुल शांत रहिए, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए। Insist your rights by using logic and politeness. आप यहाँ पर अपने अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी रखिए, सही लॉजिक का इस्तेमाल करिए, बिल्कुल पोलाइट रहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज स्पीक अप। स्पीक अप मतलब कि आप अपने भावनाओं को, अपने विचारों को सामने तक जरूर, सामने जो भी बैठे उनको व्यक्त जरूर करो। आप एक्सप्रेस योर थॉट्स एंड आइडियाज एंड ओपिनियंस विदाउट वरिंग अबाउट द पीपल रिएक्शन। आप लोगों के रिएक्शन की चिंता मत करिए। आप जो मन में आपके विचार आ रहे हैं, अगर आपको लगता है सही है, अच्छा है, तो विचार जरूर रखिए आप। इसके लिए टिप देखिए, डोंट बी साइलेंट इफ यू हैव एनीथिंग टू से। यस, आप चुप मत रहिए। अगर आपके मन में कोई विचार है, आप अपने विचारों को प्रस्तुत जरूर करिए। शेयर योर फीलिंग्स, प्रैक्टिस एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन। आप अपने ओपिनियन को आपको बताने के लिए प्रैक्टिस क्या करिए? लर्न से टू नो। आप हर काम के लिए यस मत बोलिए। आपको कुछ काम ऐसे भी होते हैं वहाँ पर नो भी आपको बोलना चाहिए। इफ यू डोंट फील राइट, से नो और यू कैन रिफ्यूज इट डायरेक्टली। क्या इसके टिप्स हैं? रिस्पेक्ट योर सेल्फ, डोंट लेट अदर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ यू, एग्री विद द पीपल यू नो आर नॉट करेक्ट मे हार्म एवरीबॉडी। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर दूसरे को आप इस तरह की सिचुएशन मत पैदा करो कि दूसरे आपका फायदा उठा सकें। आप दूसरे की बात अगर आपको सही लगती है तो सहमति जरूर दिखाइए, नहीं तो आप वहाँ पे नो जरूर करिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द बेटर कम्युनिकेशन स्टाइल। नाउ इट्स टाइम टू एंड द लेक्चर। विल मीट इन नेक्स्ट सेशन with new title. So thank you so much for listening me, for watching me, for everything. Thanks a lot.
Okay students, thank you so much for listening my voice. Keep watching my videos, and please don't forget to like, subscribe and comment on my YouTube channel. Please share your valuable feedback also. So if any kind of mistake is there, I will try to improve it in our next video. So thank you so much once again.